بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت تکلیف دہ ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، پر سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہیں جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی صفائی ہمیشہ دیتے رہنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار انسان غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتا۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ لا حاصل کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ذاتی ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم انہیں اپنے احساسات کا ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حقیقی عشق میں نہ تو رسوائی ہے اور نہ تنہائی۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسی انسان کو اپنا قربان نظر نہیں آتا۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ اس دنیا میں چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیزیں ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہیں۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز موجود ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، لیکن اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ انسان کو اگر اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا یا فوراً مر جائے گا۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا
वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में वतन तलवार की ताकत से फतेह होते हैं, मगर उन पर हुकूमतें कलम की ताकत से कायम रहती हैं। इस दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुसलमानों को शहीद होने की विरासत उन्हें उनके बुजुर्गों से मिली है। इस दुनिया में रुपया जितना भी गिर जाए, मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना उसे पाने के लिए इंसान गिर गया है। मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, क्योंकि बुज़दिल को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखें जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर शख्स को राज़ी रखना इस दुनिया में एक मुनाफिक का काम है, क्योंकि बाज़मीर और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और खफा रहते हैं। इस दुनिया में अक्लमंद हमेशा सोच कर बोलता है, और वहीं बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए अगर आपसे कोई अपना हाथ छुड़ाए तो उसे छोड़ दें। इस दुनिया में आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच्चाई में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाहों में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशनसीब है वो शख्स जो जुमे के दिन या उसकी रात में फौत हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी कब्र का फितना यानी अजाब और सवाल से उसे निजात अता फरमा देता है। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। आज इंसान परेशान है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय अपने अल्लाह के। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, पर कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, वरना तुम जालिमों में से होगे। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ अगर सोने की प्लेट में भी कुछ खाने को दिया जाए तो चम्मच ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। इस दुनिया में किसी से किसी चीज़ की तवक्को ना रखें, क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है, इंसान नहीं। एहसान जतलाने से बेहतर है कि एहसान ना किया जाए। और कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि इस बात से खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। इंसान ने लोगों को जानने का काम संभाल लिया है, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। इस दुनिया में अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, बल्कि उन्हें समझना पड़ता है। खुद आप किसी की ताबेदारी नहीं करते और चाहते हैं कि आपके हर कोई ताबेदार हों, तो ये आपकी गुमराही है। अल्लाह से वाबस्ता होना ज़िंदगी है और अल्लाह से गाफिल होना मौत है। इस दुनिया में तुम्हारा लोगों से सुलूक तुम्हारा अल्लाह से सुलूक को बयां करता है।
दौलत जिंदगी के लिए है, लेकिन आज की जिंदगी सिर्फ दौलत के लिए है। इस दुनिया में अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। जिस मसाइल पर हम सब्र करते हैं, दुरेश उस पर शुक्र अदा करते हैं। इबादत इंसान को निजात तक पहुंचाती है और इश्क उसे अपने महबूब तक पहुंचा देता है। शुक्र का मतलब ये भी है कि लोगों को आप अपने अमाल से, अपने माल से, अपने ख्याल से आसानी अता करें। इस दुनिया में अखराजात को कम करना अपनी आरज़ुओं को दबाकर ही मुमकिन है। इस दुनिया में मोमिन की उंगली दूसरों की तरफ नहीं बल्कि खुद अपनी तरफ उठती है। छोटी छोटी सुन्नतों की पैरवी शुरू कर दें तो यकीन जानिए आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। रूहानियत की राह में आप भी उस बात का ध्यान रखें कि हलक से नीचे उतरने वाला लुकमा हर सूरत में हलाल हो, हराम का ना हो। अमाल हो या इबादत, दोनों में इखलास बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में सिर्फ कनात पसंदी ही इंसान से दुनिया की मोहब्बत कम कर सकती है। गुस्से को पी जाना असल सुन्नत है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं और इसका किनारा आखिरत और इसकी कश्ती तकवा है। जब भी कोई शख्स हमसे मिले तो हम उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। एक आलिम जिस कदर ज़्यादा इल्म का मालिक होगा, उसकी गुफ्तगू उसी कदर सादा और आसान होगी। मुरीद के लिए सबसे बेहतर अमल अपने मुर्शिद की रज़ा जोई है। इस दुनिया में मोमिन की किसी पर गिला, शिकवा और शिकायत मुनासिब नहीं होती। इल्म की ज़ाती भी बाज़ दफ़ा इंसान को भटका देती है। याद रखना, कभी भी मांगने वाले को अपनी चौखट से खाली हाथ ना लौटाना। ज़मीन पर सीधे होकर चला जाए, नाज और अंदाज या लटक मटक कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान में गुरूर, तकब्बुर और किना पैदा होता है। गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजिम है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की पसंदीदा राह पर चलने के लिए अगर हम नफ्स पर ज़ब्र करते हैं तो उसका हमें बेपनाह अजर मिलता है। हिजरत में बड़ी बरकत है, क्योंकि जब एक जगह इंसान पर रिस्क तंग होता है तो वो हिजरत कर ले, इससे उसका रिस्क वसी हो जाता है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोजी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उससे थोड़े अमल पर भी राज़ी हो जाता है। इस दुनिया में जो शख्स गुनाहों के ज़रिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो उसकी आरज़ुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और वो शख्स जिस चीज़ से डरता है सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज में कितनी फजीलत है, तो अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वो फिर भी मस्जिदों में आएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से
तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। पत्थर से किसी ने कहा कि क्यों ना तुम इंसान बन जाओ, तो पत्थर ने जवाब दिया कि अभी मेरे अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई है कि मैं इंसान बन जाऊं। ए मौला, मुझे सब्र में रखना और कभी गिरने ना देना, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो अपने आंसुओं के हर एक कतरे के लिए अपने अल्लाह को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। इस दुनिया में लोग आपकी बातों के हजार मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत को आपका अल्लाह जानता है। इसलिए आपको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, ना कि बंदों की मर्जी के मुताबिक। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे करने से तुम अपनी मुश्किलात बढ़ा लोगे। इस दुनिया में कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। ये भी एक सच है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल देता है। इस दुनिया में जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर पैदा करो कि आप जिनके लिए आज सिर्फ मजाक थे तो कल आप उनके लिए एक मिसाल बन जाओ। ए इंसान, जब तुझे जाना मिट्टी में है तो फिर हसरतों का पहाड़ कैसा। इस दुनिया में जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार कर देते हैं। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा मगर अपने ख्यालात को बुलंद रखो। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफना दो। इस दुनिया में अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मौसिन होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि बदतर बनाने के लिए। नई बाब का आगाज तब नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। इस दुनिया में आपके बारे में हर किसी को सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। इज्जत उतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा दोगे तो तुम अपनी इज्जत भी खो दोगे। इस दुनिया में उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर ना आती हो। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कद्र होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। शुक्र है इज्जत और रोटी इंसान के हाथ में नहीं है, वरना ये कीड़े लगे लोग किसी को जीने भी नहीं देते। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही जबानें। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग
अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। इस दुनिया में लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्ती लगा लेते हैं। इस दुनिया में बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को उसकी तरबियत रोक लेती है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। इस दुनिया में जैसा सलूक आप मखलूक के साथ करेंगे, वैसा ही सलूक खुदा तुम्हारे साथ करेगा। रूह ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, अजियत, फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। इंसान भी कितना अजीब मिजाज का है, क्योंकि जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। इस दुनिया में बेखौफ रहने के लिए बाकिरदार होना बहुत जरूरी है। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, वो दूसरों का चैन हराम करते हैं। कुछ लोगों की कद्र और कीमत तब मालूम होती है जब वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचना कि उसको आप पर कितना एतमाद था। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम कोई बुराई करने के काबिल नहीं रहते। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी मोहब्बत करता है। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है लेकिन मुनाफिकत कभी नहीं करता। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हारा झुकना जाए ना हो, और वो दरबार सिर्फ अल्लाह का है। जब लोग आपके मेयार पर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। इस दुनिया में आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपने होते हैं वो कभी आंसू बहाने नहीं देते। अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे, तो खुद पर नाज ना कर, क्योंकि तुझे एक ना एक दिन खाक होना है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। सिर्फ सीरत का रोना ही रोते हैं, क्योंकि बात तो हर कोई शक्ल देखकर ही शुरू करता है। अगर हमारे इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छे हैं, तो हम भी सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं हो तो तब आपका खूबसूरत नजर आना बहुत आसान है। इस दुनिया में तंज वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसमें मिठास ना हो तो उसमें इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। इस दुनिया में मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो दिलों को जोड़ता है। अपना गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, उस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो इंसान अपने पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है।